लेके। सर जी पहले लैब डिस्कस करें, लैब 6 नहीं हो रही। लैब्स एग्जाम के बाद करेंगे, हो गया। ठीक है। लैब्स एग्जाम के बाद सर 1-2 हफ्ते लगा के कर लेंगे। सर लैब्स अभी हम ना करें ना। कर लें, टाइम मिलता है तो कर लें जितनी दी हुई सर हैं। नहीं हो रही ना, वो उनकी डेट सर अब टाइम नहीं मिल रहा ना डेट सर, दी हुई है, आज लास्ट डेट है क्योंकि 9 और क्लासेस भी ले 6 रहे की। हैं और किस चीज़ की लास्ट डेट है? कोर्स भी काफी। लैब सबमिशन की सर 9 और 6 वाली की आज लास्ट डेट है, उसकी डेट रिमूव कर दी या एक्सटेंड कर दी सर। डेट में एक्सटेंड कर अच्छे दूंगा, उतना इशू नहीं है, ठीक है। लैब की इतनी टेंशन ना बनाएं, लैब कर देंगे एग्ज़ाम के बाद। एक हफ्ता सर एक हफ्ता एक्स्ट्रा लगा लेंगे ना। क्लास में एक और मसला भी है, असाइनमेंट भी दोबारा क्रिएट हुई है और सर, और लेग भी 5 दोबारा वो किया। इसमें 9 और 6 आप कह रहे कि सबमिट करें, लेकिन फिर मिक्सअप हो जाएगा सर। चले मैं आज कल देख लूँगा ना, लैब वाले इतना मसला ना बनाएं। थ्योरी के असाइनमेंट में देख रहे तो वो सही कर लूँगा। ठीक है सर। प्रीवियस लेक्चर्स देखे आप लोगों ने? जी सर देखें। चैप्टर नंबर 5 का देखा था, प्रीवियस लेक्चर देखा था। जी सर, जी सर। चलें, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं तो फिर ये इंतहाई आसान सा लेक्चर है। नहीं, अब सिर्फ 10 लोगों के साथ क्लास होगी। यस सर, जो प्रेजेंट है सर लें। चलें, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर इंशाल्लाह इतना इशू नहीं होगा। सर रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे और अभी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। आप लेक्चर स्टार्ट करें। चलें आने दें। Okay, here we start with chapter number 10, that is the Z transform. We have already done a lot of mathematical details related to this chapter in chapter number 5. So here we start with basic Z transform. We already know from screen shared है? सर जी यस सर। सर। ठीक है, so we know from eigenvalues and eigenfunctions. In that case we consider that if x of n is z power n with z assumed as a complex number represented in the polar form, r represents magnitude of z, e raised power j omega, where omega represents the phase. So in time domain we say they are convolved, so y of n is x of n convolved with h of n, which is equal to summation h of k x of n minus k. Then after simplifying we say it is equal to z power n summation h of k z power minus k. So output is equal to z power n into h of z. So in that case we said that whenever output is equal to the input multiplied with some multiplying factor, then this input is known as the eigenfunction and the multiplying factor is known as eigenvalue. So here we say that h of z is equal to summation k from minus infinity to plus infinity h of k z power minus k. Or if we replace k by n, then we say h of z is equal to k from minus infinity to plus infinity h of n z power minus n, and we call this as analysis equation. Similar to discrete time Fourier transform or even continuous time Fourier transform. So here we say that, so the Z transform of h of n is given by h of n with the transform h of z, उसकी equation क्या है? Summation h of n z power minus n. Similarly, if the time domain function is x of n, its transform will be x of z. If signal is y of n, then its transform will be y of z. Signal w of n है, the transform will be w of z, and for any other function f of n we say its transform will be f of z. So when we say complex plane, so in this particular chapter the important term is z plane. In the z plane we say there's a real part and imaginary part, and we also define the term
unit circle. Unit circle का क्या मतलब है? Here if we say z is equal to r e raised to the power j omega, so omega represents the angle. The angle ranges from 0 to 2 pi, where r represents the magnitude. So when we say r equals to 1, and then angle ranges from 0 to 2 pi, then it results in a unit circle. ठीक है, unit circle means जिसका radius आपके पास 1 unit हो. So here we say that h of z converges to Fourier transform on the unit circle, and this unit circle plays very important role in terms of filters especially. So here we say h of z with z is equal to e raised to power j omega will be equal to summation n h of n e raised to the power minus j omega n. So this particular equation then represents the discrete time Fourier transform. So we say discrete time Fourier transform is a special case Z transform with a magnitude equal to 1. So when we say magnitude equal to 1, it corresponds to a unit circle. So in case of Z plane or Z transform, whenever we work out on the unit circle, means we are working with discrete time Fourier transform. So generally to find the Z transform of any function, this particular analysis equation will be used. And second important term जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, that is ROC, region of convergence. We have to specify the values of Z for which the transform will converge. ठीक, आगे आएगा आपके पास. So here we consider as let's say a signal x of n is a power n u of n. So if you remember from the previous chapter number 5 discrete time Fourier transform, in that case we say the magnitude of a should be less than 1. याद है किसी को? जी सर. वहाँ पे हम specify करते थे the magnitude of a should be less than 1, but here we don't say anything about a. A can have any real value. So here we use the term analysis equation to find the Z transform. So using same सर इट्स मीन summation. ये सिस्टम ये स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं. Stable भी हो सकते हैं, unstable भी हो सकते हैं. Continuous discrete time Fourier transform is only used for the analysis of stable system, in which we say input must be bounded, output must be bounded. Where in this case, it's not necessary that value of a should be less than 1 to make the input bounded. ठीक? So here we say using analysis equations x of z, x of n, z power minus n, x of n की value डाल दें power n u of n. Simplify this equation, we end up with n is equal to 0 to infinity a z inverse whole power n. Now when we say that the above summation must converge, if the above summation will converge, then we say that the Z transform exists, and if it will converge, then its inverse will also exist. किसी भी transform में transform और उसका inverse they both must be available. अगर आप transform ले रहे हैं और उसका inverse नहीं आ रहा, that is not allowed. So here we say that the above summation must converge. ये summation कब converge होगी? जब magnitude of AZ inverse is less than 1. Clear? क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक मिनट, मुझे आपकी किसी स्टूडेंट की कॉल आ रही है, वो रिसीव कर लो. हेलो, वालेकुम सलाम जी. फैसल, ठीक ठाक, खैरियत है.
वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब तो 19 लोग हो गए हैं। So we started with this example that summation x of n z power n, we ended up with summation a z inverse power, and now we say this summation must converge. This will converge only if magnitude of a z inverse will be less than 1. So simplifying this thing, we say a divided by z is less than 1, or a is less than z, or alternately we say z is greater than a. So if the magnitude of z will be greater than a, then this summation will converge. So we say in the z plane, basically when we say z transform, so in the entire z plane this summation will converge. एक्सक्यूज मी सर, जी, सर एक बार आपने लिखा है ए मैग्नीट्यूड लेस देन जेड मैग्नीट्यूड, फिर वो हाँ सही सर सही। a less than z और z greater than a, बात एक ही है ना, जी सर मैं ठीक है। तो in the entire z plane we say the transform will Sir? exist। जी, या हम जी प्लेन को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्या चीज? Z ट्रांसफॉर्म में हम जी प्लेन को क्यों कंसीडर करते हैं? Because we are interested in the, generally we say stable system as well as unstable system। तो जब हमने stable system की बात की थी discrete time Fourier transform में, तो वहाँ पे हमने a का confirm कहा था कि the magnitude of a should be less than 1। अगर a का magnitude 1 से कम होगा तो this will be then bounded input, and then for bounded input output will be bounded। Discrete Fourier transforms are used for analysis of stable systems only, where we can use the Z transform or even Laplace transform for the analysis of both stable as well as unstable system. So here we say we don't know what is A. A is any real number. It can be 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी value हो सकती है इसकी, ठीक? So when we say Z plane, so in the Z plane there is a real axis and imaginary axis. We generally call it as a Z plane, ठीक? तो ये पूरे का पूरा Z प्लेन है। तो इस Z प्लेन में ट्रांसफॉर्म, Z ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का कहाँ पे होगा? So for that we say that whatever the value of A is, कुछ भी वैल्यू हो, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, so we say its transform will exist, but for that associated region of convergence must be defined। the magnitude a की वैल्यू चाहे जो भी हो, ठीक है, किस रीजन में ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, that region will be defined as a region of convergence, and that will be for magnitude of z greater than a। अगर z की वैल्यू a से ज़्यादा होगी then the transform will exist, otherwise this transform will not exist। क्यों not exist? Because this summation will diverge then। So for that reason we say x of z is summation n from 0 to infinity a z inverse power n। So if this transform exists, so this will be then 1 over 1 minus a z inverse। लेकिन ये सिर्फ किस केस में? when z is greater than a। if z is less than a, so in that region the transform does not exist, ठीक? So now simplifying this equation, that is 1 over 1 minus az inverse can be rewritten as 1 over 1 minus a divided by z, or it is, so after simplifying we say x of z is equal to z divided by z minus a, with the condition that the magnitude of z should be greater than a, and we generally call this as region of convergence। region of convergence की और भी properties हैं, इसी lecture में बाद में हम पढ़ेंगे। So generally we call this as the rational form, ठीक है? otherwise यहाँ तक भी काफ़ी है, 1 over 1 minus az inverse। तो rational form का क्या मतलब है? we say x of z is p of z divided by q of z। numerator and denominator both are written in the positive powers of z। तो अगर इस रैशनल फॉर्म में दो टर्म्स यूज होते हैं, जीरोज एंड पोल्स। व्हाट आर द जीरोज ऑफ सिस्टम? जीरोज आर दोज वैल्यूज
at which the system function is equals to 0, magnitude equals to 0, and poles are those values for which the system function is undefined. ठीक, यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू a लेंगे तो ट्रांसफॉर्म विल बी undefined, and if we say z is equal to 0, then 0 divided by anything will be equal to 0. So, अगर आप इसको पोल 0 प्लॉट में देख लें, एक आपके पास 0 है ओरिजिन पे, ठीक है, और एक आपके पास पोल है at any point A, and then we say there is a unit circle. तो ज़रूरी नहीं है कि पोल आपका यूनिट सर्कल के अंदर लाई करे, ठीक है, पोल द वैल्यू ऑफ A कैन बी ग्रेटर देन 1. So but here we say region of convergence get Z greater than A. So पूरे का पूरा Z plane है for the region of convergence except for this inner circle, ठीक है, जहाँ पे आपके इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा, इट इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है. So the magnitude of A can be greater than 1, magnitude of A can be less than 1. A greater than 1 होगा तो इसका क्या नुकसान और फ़ायदा है, और A की वैल्यू 1 से कम हो तो उसका क्या नुकसान फ़ायदा है, that will be discussed in this class in upcoming slides. So generally we say zeros are the values for which the system function is undefined, and poles are those zeros are the values for which the system function equals to 0, and poles are those values for which the system function is undefined. तो इसमें और फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है? फोरियर ट्रांसफॉर्म में we always say it's a unit circle, but here in this case we say the associated region of convergence must be defined for every system. एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये 0 मतलब अगर होगा तो सिग्नल का बिहेवियर क्या होगा, और अगर अनडिफाइंड है तो सिग्नल का बिहेवियर क्या होगा? कि जीरोस का तो मतलब है ना कि z की कौन सी वैल्यू के लिए आपको सिस्टम पे आउटपुट से 0 मिलेगी, ठीक है. सो वी से z इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, देयर कैन बी अदर वैल्यूज, एंड व्हेन वी से z इज इक्वल टू a मींस द सिस्टम विल बी अनडिफाइंड. सिस्टम अनडिफाइंड का मतलब क्या, कि आपको आउटपुट नहीं मिलेगी. तो z की 0 वैल्यू के लिए आपको आउटपुट 0 मिलेगी. z की वैल्यू अगर आप इस केस में a लेंगे विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोल, then the output of system will be undefined. यहाँ पे तो हम with reference to signal इसको define करें, but generally this is represented with reference to the system function h of z, ठीक है. mathematical details सारी यही हैं, but they are more important, these terms are with reference to h of z rather than x of z. सर मीन्स के मतलब हम ये वैल्यूज जो है ना सिस्टम को नहीं दे सकते क्योंकि इस पे हमारे पास अनडिफाइंड और 0 आउटपुट आ रहा है. बेसिकली हम इसको h of z कहते हैं ना, यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल है कि x of n या x of z है, एक्चुअली इट इज h of z. अब नाउ के जाके हम सिस्टम की इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो देन वी से दिस इज h of z, ठीक है. h of z पे z इज इक्वल टू 0 मीन्स ये वो वैल्यूज हैं z के, वो पॉइंट्स हैं इन दिस इंटायर z प्लेन. ये वो दो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपके पास सिस्टम की वैल्यू जीरोस पे z इज इक्वल टू 0 आएगा, सिस्टम फंक्शन 0 होगा, आउटपुट मीन 0 होगी. और अगर आप z इज इक्वल टू a की वैल्यू लेंगे मीन्स पोल वैल्यू पे इन दिस एंटायर z प्लेन, देन द सिस्टम फंक्शन विल बी अनडिफाइंड. तो इनफैक्ट आगे जाके हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि आउटपुट किसके इक्वल है. इन केस ऑफ कन्वोल्यूशन इट इज इनपुट कन्वर्ट विद द इम्पल्स रिस्पॉन्स. सो इन द z डोमेन इट विल बी x of z मल्टीप्लाइड विद h of z. तो z की वो वैल्यूज जहाँ पे आपको y of z 0 मिलेगा, और z की वो वैल्यूज जहाँ पे आपको आउटपुट अनडिफाइंड मिलेगी. सो दिस विल इन दिस एंटायर z प्लेन ये वो पॉइंट्स होंगे जीरोज एंड पोल्स, ठीक. फिर आगे जाके इसी लेक्चर में हमने पढ़ना है कि पोल्स और जीरोस की लोकेशन से फ़र्क क्या पड़ता है, कि पोल्स कहाँ पर होने चाहिए, जीरोस कहाँ पर होने चाहिए. मोर इम्पॉर्टेंट टर्म इज पोल्स रादर देन जीरोस, ठीक. And we also say number of poles defines order of system.
So here we said x of z comes out to be in the rational form as z divided by z minus a. The region of convergence as z greater than a. अब ये दो एग्जांपल्स हैं, अगर आप इनको प्रॉपर्ली समझ लेंगे फिर ये पूरे का पूरा चैप्टर आगे आसान चलेगा. We consider another sequence, that is minus a power n u of minus n minus 1. ठीक है. अब इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसे समेशन n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस ए पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 z पावर माइनस n. देन u ऑफ माइनस n माइनस 1 की लिमिट्स क्या बनेंगी? दैट विल बी n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू minus 1 and minus a power n z power minus n. So we can simply say replace n by minus n. The summation then n from 1 to infinity minus a power minus n then z power plus n, which can be rewritten as minus summation n minus 1 equals to 0 to infinity a inverse z whole power n. So we say put n minus 1 is equal to L or n will be equal to L plus 1. Summation की लिमिट्स क्या बनेंगी? From 0 to infinity a inverse z power L plus 1. Then we say minus summation a inverse z power L and then a inverse z. L plus 1 है तो L को अपनी जगह पे रहने दे, plus 1 के टर्म को अलग कर दें which is a inverse z. फिर इस plus टर्म को अलग कर दें तो we say minus a inverse z summation L from 0 to infinity a inverse z whole power L. Again we say this summation must converge. ठीक है. ये summation converge कब होगी? When a inverse z will be less than 1. ठीक है. और simplifying this thing we say z by a should be less than 1 और z should be less than a. तो यहाँ पे region of convergence क्या बन रहा है? When magnitude of z will be less than a, then this sum will converge and this convergence value will be 1 divided by 1 minus a inverse z. Again अगर आप इसको rational form में लिखें, so this will be minus a inverse z divided by 1 minus a inverse z. Simplifying this equation step by step, we end up with z over z minus a with a region of convergence as z less than a. इसमें और पहली एग्जांपल में क्या फ़र्क है? रैशनल फॉर्म दोनों की सेम है. ठीक है. x of z is z over z minus a. This form is same for both signals. पहला सिग्नल क्या था? a power n u of n और दूसरा सिग्नल क्या था? minus a power n u of minus n minus 1. रैशनल फॉर्म दोनों की सेम है जबकि ROCs डिफरेंट हैं. In the first case region of convergence was z greater than a where a is the pole location. और इस केस में क्या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? z is less than a. So in case of z ट्रांसफॉर्म, जब भी आप ट्रांसफॉर्म लेंगे तो उसका जो एसोसिएटेड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इट मस्ट बी रिटन विद दैट. ठीक. अगर आप ROC साथ में मेंशन नहीं करते तो उसका क्या नुकसान होगा? इनवर्स कुछ भी हो सकता है फिर उसका. ठीक. इसी प्रोसेस को यहाँ पे देख लें. फिर एक और एग्जांपल ही है. x of n 7 into 1 by 3 power n u of n minus 6 into 1 by 2 power n u of n using again the analysis equation. ठीक है. इसको आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो आपके पास पहला टर्म क्या बन? ROC क्या था? ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है. मतलब वो एक में तो z ग्रेटर था, एक में z लेस था. आपने कहा था कि अगर ग्रेटर होगा तो पॉसिबल नहीं होगा फिर सॉल्यूशन. नहीं, उस केस में वो सीक्वेंस डिफरेंट है ना. सीक्वेंस डिफरेंट है कि ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा. एक केस में कब एग्जिस्ट करेगा? जब z का मैग्नीट्यूड a से कम होगा. किस सीक्वेंस के लिए? जब आपके पास ये सीक्वेंस है माइनस a पावर n ऑफ माइनस n माइनस 1, then its region of convergence will be z less than a. अगर z की वैल्यू a से ज़्यादा लेंगे आप मैग्नीट्यूड a चाहे कोई भी नंबर हो
then its transform will diverge. डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा? ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकली तो आ जाएगा z ट्रांसफॉर्म, लेकिन उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा. एंड ठीक है सर. सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन क्या हो, a पावर n u ऑफ n हो, तो उसका ट्रांसफॉर्म की रैशनल फॉर्म यही बनती है z और z माइनस a. लेकिन उसके केस में आर ओ सी क्या है? फॉर z ग्रेटर देन a. थोड़ा साथ साथ चलती जाइए, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. So here we say consider a sequence x of n is 7 1 by 3 power n u of n minus 6 1 by 2 power n u of n. Using analysis equation after simplifying, तो यहाँ पे क्या बनता है? समेशन की फॉर्म 7 टाइम्स समेशन n from 0 to infinity 1 by 3 z inverse whole power n minus 6 समेशन n from 0 to infinity 1 by 2 z inverse whole power n. अब z ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा? इफ x of z will converge. x of z कन्वर्ज करने का क्या मतलब है? ये दोनों समेशंस इंडिपेंडेंटली कन्वर्ज करें. So if you consider the first summation, then we say 1 by 3 z inverse whole power n will converge. कब? When magnitude of 1 by 3 z inverse should be less than 1, or simplifying we say magnitude of z should be greater than 1 by 3. मीन्स यहाँ पे z का मैग्नीट्यूड 1 by 3 से ज़्यादा होगा तो दिस सम विल कन्वर्ज. सिमिलरली समेशन n, दूसरा जो समेशन है दैट इज समेशन n फ्रॉम 0 to infinity 1 by 2 z इनवर्स पावर n विल कन्वर्ज. कब? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 by 2. तो x of z आपको क्या मिलेगा? दिस इक्वेशन, this will be 7 into 1 over 1 minus 1 by 3 z inverse minus 6 times 1 over 1 minus 1 by 2 z inverse. मुझे कोई बता सकता है कौन से ऑर्डर का सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर, ठीक है. इसमें दो पोल्स हैं. अब मैग्नीट्यूड भी से आर ओ सी एक का क्या है? z ग्रेटर देन 1 by 3 और दूसरे समेशन का आर ओ सी क्या है? z ग्रेटर देन 1 by 2. So after simplifying this to the rational form, ठीक है, तो इसकी रैशनल फॉर्म क्या बनेगी? z into z minus 3 by 2 divided by z minus 1 by 3 into z minus 1 by 2. ओवरऑल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? It will be basically the intersection of two. ठीक. So for second order system, ROC is always R1 intersection R2. R1 represents the region of convergence for first summation, in which case we say it is Z greater than 1 over 3. And R2 is Z greater than 1 over 2. तो इन दोनों का कॉमन रीजन क्या बनता है? Z greater than 1 by 2. मीन्स अगर इस पूरे x ऑफ z में जब भी आप मैग्नीट्यूड ऑफ z ग्रेटर देन 1 over 2 लेंगे, देन x ऑफ z विल कन्वर्ज. ठीक. और जब आप z की वैल्यू 1 over 2 से कम लेंगे, देन दिस समेशन विल डाइवर्ज. ठीक है. से अगर z की वैल्यू 1 by 2 लें एग्जैक्टली, तो ये क्या हो जाएगा? 1 by 2 minus 1 by 2 0, डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू आ रही है, देन दिस will be undefined value. ठीक है, पूरे का पूरा. अगर सिमिलरली अब z की वैल्यू एग्जैक्टली 1 by 3 लें, then again this entire term will be undefined. ठीक. So here we say the region of convergence क्या है? It's R1 intersection R2. R1 represents the region of convergence for one pole and R2 represents the region of convergence for the other summation or pole value. Generally यहाँ पे जो important term है that is region of convergence. अब इन तीन एग्जाम्पल्स के लिए खुद अगर आप तीनों को देख लें तो वहाँ की समरी की स्टोरी क्या बनती है? इसे a power n u of n has z transform 1 over 1 minus a z inverse which is equal to z over z minus a with a region of convergence z greater than a. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होंगे प्लीज. दैट इज राइट साइडेड सीक्वेंस एंड लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस. अब राइट साइडेड सीक्वेंस क्या है?
राइट साइडेड का क्या मतलब होगा? तो अगर आप टाइम राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड, दे आर बेसिकली द टर्म्स इन टाइम डोमेन। ए पावर एन यू ऑफ एन को हम राइट साइडेड सीक्वेंस इसलिए कहेंगे कि अगर आप ओरिजिन कंसिडर करें n इज इक्वल टू 0, then this function exists for the values of n greater than 0. So we say it is a right sided. So for right sided sequence, region of convergence will be always for a region greater than the value of pole. तो यहाँ पे pole किस पोजीशन पे है? Z is equal to A. Okay. So the pole will, for right sided sequence, region of convergence will always be Z greater than A. Similarly, दूसरा सीक्वेंस क्या है? माइनस ए पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। अगेन जो भी हमने एग्जांपल किया, वी एंडेड अप विद द रैशनल फॉर्म एज z over z minus a with a region of convergence z is less than a. In time domain, we say this represents a left-sided sequence. क्यों left-sided? Because it extends to minus infinity. It extends from minus 1 to minus infinity. So we say it's a left-sided sequence. जो आपके पास पहला वाला है, it extends from 0 to plus infinity. So we say it is right-sided. तो अगर sequence left-sided होगा, then the region of convergence will be always less than the value of pole. यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? जी सर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर आपको टाइम डोमेन फंक्शन मालूम है, देन इट्स फॉर z ट्रांसफॉर्म इज यूनिक। ठीक है, Fourier transform means for when we say z transform is unique means its ROC is also unique, कि वो एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए डिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू नो द z ट्रांसफॉर्म एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इट्स इनवर्स, इस एक पॉइंट को समझ लें तो फिर आपका मैक्सिमम ये चैप्टर क्लियर है। फिर सारी मैथमेटिकल डिटेल्स हैं और उसमें कोई खास बात नहीं है। Now if we say if the z transform is known and you are supposed to find inverse, तो फिर क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा हुआ है? सर मतलब इसके साथ वो रीजन मेंशन ना हो तो मतलब इसका यूनिक नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। So if the region of convergence is not defined, ठीक है, the associated नहीं पता कि इसका ROC क्या है, then there are multiple possible इनवर्सेस। क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ इस एग्जांपल में आप देख लें तो इन दोनों का ROC डिफरेंट है लेकिन रैशनल फॉर्म सेम है। ये भी z ओवर z माइनस ए है, दूसरा भी z ओवर z माइनस ए है। तो z ओवर z माइनस ए का इनवर्स a पावर n u ऑफ n भी हो सकता है। z ओवर z माइनस ए का इनवर्स माइनस a पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे भी लिखी है। If x of z is given in the rational form, then its inverse is not unique. Whereas if x of n is known, then its z transform is always unique. क्योंकि अगर x of n known है तो उसका जो भी ट्रांसफॉर्म आएगा वो यूनिक होगा with a unique region of convergence. So if we say for given x of z, its associated ROC must be defined. तो ROC defined है तो फिर उसका ट्रांसफॉर्म इनवर्स यूनिक होगा। ठीक, और अगर ROC defined नहीं है then there are multiple possible ROCs. Same is written here. If ROC is defined for x of z, then its inverse is unique. अब नोट में क्या है, अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो पॉसिबल ROCs कितने होंगे? 2। ठीक है, कि एक पोल है तो ROC राइट साइडेड भी हो सकता है, ROC लेफ्ट साइडेड भी हो सकता है। मीन्स फॉर z ग्रेटर देन a और z लेस देन a। अगर आपके पास से दो पोल्स हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम तो फिर उसके लिए पॉसिबल ROCs कितने होंगे? देयर आर 3 पॉसिबल ROCs। एक को कहेंगे राइट साइडेड, दूसरे को क्या कहेंगे? लेफ्ट साइडेड, एंड द थर्ड वन विल बी देन 2 साइडेड सीक्वेंस। सिमिलरली फॉर इस कोर्स में हम सेकेंड ऑर्डर से आगे नहीं जाएंगे। सिमिलरली फॉर nth ऑर्डर सिस्टम
मीन्स जब जिसमें n नंबर ऑफ पोल्स हो, देन द पॉसिबल ROCs आर n+1। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दोबारा गिवन है। कंसिडर वन पोल एट z इज इक्वल टू a, तो पॉसिबल ROCs क्या होंगे? z ग्रेटर देन a और z less than a. Either it can be right sided sequence or it can be inverse, can be left sided sequence। ठीक है, तो अगर right sided sequence है तो inverse क्या होगा? a power n u of n। left sided sequence हो तो then it is minus a power n u of minus n minus 1। मीन्स जो एग्जाम्पल नंबर 10.1 और 10.2 के दो ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं, you have to memorize them on finger tips। जी ये तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइडेड होता है, ये u -1 क्यों होता है? -u से माइनस लेफ्ट साइड हम इसको इसलिए कह रहे हैं ना, नहीं, इसमें -1 क्यों ऐड करते हैं? 0 वो 0 क्यों नहीं देते? सिर्फ सिंपल माइनस ये माइनस हटा दें फिर भी इट्स अ लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये यूनिट स्टेप जो है माइनस एन माइनस 1 है ना जी, तो इसे शिफ्ट तो लेफ्ट माइनस एन सिर्फ नहीं, ये आपके देखें दो डिफरेंट सीक्वेंसेस आपने कंसीडर किए। एक आपने सीक्वेंस दिया a पावर n u ऑफ n, उसका ट्रांसफॉर्म फाइंड किया तो रैशनल फॉर्म में दैट इज z और z माइनस a। एक दूसरा हमने सीक्वेंस दिया दिस इज माइनस a पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। इसका भी जब ट्रांसफॉर्म लें तो रैशनल फॉर्म में आपको क्या मिलता है? इट इज अगेन z और z माइनस a। दोनों में डिफरेंस क्या था? एक में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है z ग्रेटर देन a, एक में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है z लेस देन a। तो सिर्फ दोनों इसलिए लिए कि अगर आप इसका इनवर्स फाइंड करेंगे z और z माइनस a तो इसका इनवर्स क्या होगा? ठीक है, तो इसका इनवर्स राइट साइडेड सीक्वेंस भी हो सकता है a पावर n u ऑफ n, और इसी सिस्टम फंक्शन का या ट्रांसफॉर्म का इनवर्स क्या हो सकता है? माइनस a पावर n u of minus n minus 1। These are just two sequences considered to verify that कि जो z ट्रांसफॉर्म है उसका इनवर्स यूनिक नहीं है until and unless region of convergence is not defined। So if region of convergence is defined then its inverse is unique। लेकिन अगर ROC defined नहीं है फिर multiple ROCs पॉसिबल है। क्लियर? ये चीज लेप्लास ट्रांसफॉर्म में भी है कि अगर आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइंड है, स्पेसिफाइड है, तो उसका इनवर्स हमेशा यूनिक होगा। लेकिन अगर आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस स्पेसिफाइड नहीं है, जो उसका इनवर्स है वो यूनिक नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबल ROCs। Then from those ROCs we have to select a specific ROC, specific inverse which suits or the desired results। ठीक है, now we say for a second order system। ट्रांसफॉर्म सर, जी जी सर ये ट्रांसफॉर्म तो हमारे पास स्पेसिफिक आरओसी से आया है ना सर। इनवर्स में भी तो मतलब हम उसका आरओसी निकाल सकते हैं ना? नहीं, तो ROC सपोज आपके पास गिवन है रैशनल फॉर्म में z और z माइनस a, इसका इनवर्स कौन सा होगा? सर देखिए ये इनवर्स हमारे पास किसी आरओसी के प्रेजेंस में ही आया है ना। तो ठीक है, ROC की प्रेजेंस में आया। ठीक है, एग्जांपल 10.1 में क्या था? एग्जांपल 10.1 को देख लेना। a पावर n u ऑफ n x ऑफ n गिवन है, आपने x ऑफ z फाइंड किया, आपके पास क्या वैल्यू आई है रैशनल फॉर्म में? z और z माइनस a। लेकिन इसका ROC क्या है? z इज ग्रेटर देन a। ठीक है ना, डिफाइंड टाइम डोमेन फंक्शन के लिए आपको ये ROC मिला है। किसका टाइम डोमेन फंक्शन डिफाइंड था वो आपको पता था, वो क्या था? a पावर n u ऑफ n। तो वहां से आपको ये ROC की वैल्यू मिली है, तो उसके लिए ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, फिर आपने एक और सीक्वेंस लिया माइनस a पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। इसको भी आपने सॉल्व किया कि ये समेशन कन्वर्ज होगा। ये समेशन कब कन्वर्ज होगा? जब a इनवर्स z की वैल्यू 1 से कम होंगी। और वी से दिस रिजल्टेड इन माइनस a इनवर्स z डिवाइड बाय 1 माइनस a इनवर्स z फॉर z लेस देन a। तो अगर आप इसको रैशनल फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दें, इसकी रैशनल फॉर्म अगेन क्या बनती है? z और z माइनस a।
मीन्स पोल जीरो प्लॉट दोनों सीक्वेंसेस का सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें आरओसी क्या बने आपके पास, z लेस देन a। तो क्वेश्चन यही है कि अगर आपको टाइम डोमेन फंक्शन नोन है तो उसका ट्रांसफॉर्म यूनिक होगा और उसका आरओसी भी यूनिक होगा, ठीक। लेकिन अगर आपको टाइम डोमेन से सॉरी z डोमेन में ट्रांसफर से z ट्रांसफॉर्म इज नोन लेकिन उसका आरओसी डिफाइंड नहीं है, फिर उसका टाइम डोमेन इनवर्स फंक्शन क्या होगा, ठीक है। सर कोई भी आर सिलेक्ट कर सकते हैं उन दोनों में से। कोई भी आरओसी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप एक आरओसी सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए अपना इनवर्स होगा, अब दूसरा आरओसी सेलेक्ट करेंगे तो उसका इनवर्स डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है कि अगर a पावर n u ऑफ n है तो उसका ट्रांसफॉर्म क्या है z और z माइनस a विद आरओसी z ग्रेटर देन a। सिमिलरली अगर आप ये फंक्शन लें तो उसका ट्रांसफॉर्म भी क्या होता है, z over z minus a with ROC defined as z less than a. So we generally call this one as the left-sided sequence, and the first one is known as the right-sided sequence. So is right-sided या left-sided, it is in terms of time domain. कि ये जो सिग्नल है आपका कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, मीन ऑरिजिन की राइट साइड पे, और ये जो दूसरा सिग्नल है ये कहाँ पे होगा, ऑरिजिन की लेफ्ट साइड पे। सो वी से इट्स अ लेफ्ट साइडेड एंड दिस वन इज राइट साइडेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि अगर आपको ट्रांसफॉर्म गिवन है एंड यू आर सपोज टू फाइंड द इनवर्स, और यही मेन काम है कि ट्रांसफॉर्म गिवन हो तो उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है। सो इट कैन बी राइट साइडेड सीक्वेंस, इट कैन बी लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। तो ये जो ट्रांसफॉर्म पेयर्स गिवन है विद देयर आरओसीज, यू हैव टू मेमोराइज देम, ठीक है। पूरे चैप्टर में फिर यही यूज होंगे टू टेक द इनवर्स। सो ये वी से कि पॉसिबल आरओसीज कितने हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मींस इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पोल्स। एक पोल है तो दो पॉसिबल आरओसीज होंगे। सपोज पोल कहाँ पे है, एट z इज इक्वल टू a, तो पॉसिबल आरओसीज क्या हैं, either it can be z greater than a or it can be z less than a. So that can be either right-sided sequence or it could be left-sided sequence. Similarly, अगर second order system है तो number of poles are 2. So say there are two poles at z is equal to a and z2 equals to b with a condition b is greater than a. अब इसमें possible ROCs क्या होंगे, ठीक है। So if we say it is a right-sided sequence, then the possible ROCs, तो R1 क्या होगा, Z greater than A, R2 क्या होगा, Z greater than B। तो अगर दो पोल्स हो तो ROC क्या होता है, it is the intersection of the two. So the overall ROC for this case will be Z greater than B. So we say it is a right-sided sequence. So this is one possibility. दूसरी possibility क्या हो सकती है, less than z, less than what, B or A? greater than z, जी B सर, A ग्रेटर देन B। क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आ रही। Z ग्रेटर देन B तो राइट साइडेड हो गया, लेफ्ट साइडेड के लिए क्या होगा, z less than b sir, या फिर ऊपर Less a than- greater than Z less than A. A, Z less than A and also Z A होगा less सर। than B। दूसरा लेफ्ट साइडेड होगा ना, Z less than A as well as Z less than B। तो इनका कॉमन रीजन कौन सा बनेगा, इंटरसेक्शन Z less than A and Z less than B, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए दोनों में आ रहा तो है। Z less than A, A less Z less than than B, इनका इंटरसेक्शन क्या बनता है, Z less than A। So in this case we say it represents a left sided sequence। तो अगर आप इन दोनों को जरा कंपेयर करें फिगर से भी, तो ROC पहले में क्या है, फॉर राइट साइडेड सीक्वेंस इट इज आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, ठीक। तो आउटर मोस्ट पोल इस केस में कहाँ पे है, B की लोकेशन पे है।
जो कोई भी रियल नंबर हो 2 3 4 5 6 कोई फ्रैक्शन वैल्यू जो भी नंबर आता है, ठीक है। इन केस ऑफ राइट साइडेड सीक्वेंस ROC इज ऑलवेज द आउटसाइड द आउटरमोस्ट पोल, ठीक। लेफ्ट साइडेड के लिए ROC क्या है, it is inside the innermost pole. Innermost pole means the pole with the smallest magnitude. Outermost pole का मतलब क्या होगा, a pole with a maximum magnitude. ठीक। तीसरा केस क्या सर बन, ये इनर साइड और आउटसाइड का क्या मतलब हुआ? इनर मतलब पोल ए पे है ना, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा है, वो वाला सर्कल जिसमें मैग्नीट्यूड ए से कम होगा. So means we say it's inside the innermost pole with the magnitude, pole magnitude equals to A. और outside the outermost pole, outermost pole B की लोकेशन पे, तो B पे अगर आप सर्कल ड्रा करें because we say it's magnitude, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में हमेशा आपके पास सर्कल बनेगा इन द कम्प्लेक्स प्लेन, और उस पूरे सर्कल का रेडियस क्या होगा इन केस ऑफ पोल बी, अगर ए को लेंगे तो फिर ए होगा. तो आउटर मोस्ट पोल इज दिस सर्कल विद रेडियस इक्वल टू पोल मैग्नीट्यूड विच इज बी. इसके बाहर अगर है तो वी से इट्स राइट साइडेड, ए के अंदर है तो वी से इट इज लेफ्ट साइडेड. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लेस देन बी एंड ए और बी के दरमियान. तो ए से ग्रेटर का मतलब है राइट साइडेड सीक्वेंस, और बी से लेस का क्या मतलब होगा, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस. तो थर्ड पॉसिबिलिटी इज फॉर ए ग्रेटर देन z greater than a and less than b. So generally we call this as a two-sided sequence. ठीक. तो अब इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, क्वेश्चंस हैं, लाइक के अगर आप कहते हैं राइट साइडेड सीक्वेंस है तो इसमें z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, ठीक है. अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है तो इसमें फिर ओरिजिन इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है. अब थर्ड केस में तो ना तो ओरिजिन इंक्लूडेड है ना इन्फिनिटी, ओनली इन दिस पर्टिकुलर रिंग, that is for z greater than a and less than b, we say the transform will exist. देखिए सिंपल एग्जांपल अगर आप उठा लें, स्टेबलाइजर्स. स्टेबलाइजर में हम कहते हैं जी 220 वोल्ट्स आउटपुट पे आ रहा है, तो इनपुट की क्या रेंज हो, स्टेबलाइजर में नॉर्मली इनपुट की क्या रेंज होती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम. आपकी आवाज स्लो आ रही. जनरली डिपेंड्स ऑन स्टेबलाइजर टाइप. बाद स्टेबलाइजर्स आपको मिलते हैं कि जी 180 से लेकर 240 तक. इस रेंज में अगर इनपुट मिलेगी तो आउटपुट विल बी 220 वोल्ट्स फिक्स. सिमिलरली इन सम वेरी गुड क्वालिटी आपको 150 वोल्ट से हो सकता है 270 वोल्ट्स तक मिल जाए. जी जनरली क्या होते हैं, 80 भी होता है मेरे घर में, 80 ओनली 80 वोल्ट से 220. मतलब फिर वो इतना अच्छा एम्पलीफायर है कि वो सिर्फ 80 वोल्ट्स को उठा के 220 वोल्ट्स पर लेके आ रहा है. फिर उसकी कीमत भी ऐसी ही होगी ना मार्केट में. So that is simply we say it's just one example of region of convergence के अगर इनपुट इस रेंज से इस रेंज तक होगी then its output will be converged to 220 volts. अगर इससे वैल्यूज कम होंगी से अब उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि 50 वोल्ट्स के इनपुट को उठा के 220 वोल्ट्स करे, ठीक है. So that will be considered as a diverging input. So in case of input we can say that जो लोअर अपर लिमिट्स हैं उस केस में तो हम उसको रेंज कहेंगे, ठीक है जी. इनपुट की क्या रेंज है, आउटपुट की क्या वैल्यू है. Here we can say in terms of transforms we say it is the region of convergence rather than range. So there are three types. The third type क्या two sided है. तो two sided में क्या है, z greater than a, so we say it will be representing a right sided sequence. means जब आप इसका inverse लेंगे तो इसका inverse आएगा right sided sequence का. और when you say z is less than b, so we say it will be left sided. इसका जब आप inverse लेंगे तो you have to consider the left sided
सीक्वेंस, इससे रिलेटेड बहुत सी एग्जांपल्स हैं, ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ इससे अब ये एग्जांपल बुक में नहीं है, मैंने खुद से उठा के एक एक पॉइंट को स्टेप वाइज सॉल्व किया है टू फाइंड द इनवर्स बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस और पोल्स कितने हैं? सर 1 0 एक जीरो है z इज इक्वल टू 2 पे, और दो पोल्स हैं z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द इनवर्स, क्योंकि इनवर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा तो एक सिंपल इक्वेशन है समेशन से, तो अब इस प्लीज़ इस एग्जांपल को समझ लें, देन बाकी देन गो थ्रू है। सो सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें इस पे। ठीक है, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाता। आपके पास a की वैल्यू -1 आ रही है, b की वैल्यू +2 आ रही है। So x of z is then 2 divided by b equals to 2, the 2 divided by z minus 4, a equals to -1, so this will be -1 divided by z minus 3. x of z क्या है? 2 divided by z minus 4 minus 1 divided by z minus 3। अगर इसको मैं ट्रांसफॉर्म पेयर की फॉर्म में ले आऊँ, तो x डिनोमिनेटर से z कॉमन लें, तो z कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? 1 minus 4z इनवर्स। ठीक है, और दूसरे टर्म में से आप z कॉमन लें तो यू आर लेफ्ट विद 1/1 minus 3z इनवर्स। तो यहाँ पे जो z इनवर्स है, दिस बेसिकली इंट्रोड्यूसेस अ टाइम शिफ्ट ऑफ 1 यूनिट। एक प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देख लें, x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? x ऑफ z। तो x ऑफ n माइनस n नॉट का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? z पावर माइनस n नॉट इंटू x ऑफ z। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो n नॉट की वैल्यू क्या बनती है? 1। ठीक, तो अब अगर आप इस टर्म को देख लें, दिस इज 1/1 minus 4z इनवर्स। ठीक है, तो ये तो z डोमेन में है। इसको आप रैशनल फॉर्म में लें तो ये टर्म क्या बनता है? सिर्फ ये दूसरा टर्म, दिस विल बी z डिवाइडेड बाय z minus 4। सिमिलरली दिस इज माइनस z इनवर्स इंटू 1/1 minus 3z इनवर्स। इसको अगर आप सिर्फ दूसरे टर्म को रैशनल फॉर्म में लाएं तो दिस इज z over z minus 3। ठीक, तो अब इसका इनवर्स क्या होगा? सो हियर वी से देयर आर 3 पॉसिबल ROCs। 3 पॉसिबल ROCs कौन सी हैं? राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड एंड देन टू साइडेड। तो अगर राइट साइडेड सीक्वेंस हो तो ROC क्या बनेगा? एक पोल है 3 पे और एक पोल है 4 पे। सो फॉर राइट साइडेड सीक्वेंस वी से z greater than 3 and z greater than 4. So R1 intersection R2 will result in z greater than 4. So one of the possible ROCs will be z greater than 4. The second possible ROC will be left sided sequence, that will be z less than 3 and as well z less than 4. तो दोनों का जो कॉमन बनेगा z will be less than 3. Third possible ROC will be two sided sequence, z greater than 3 and z less than 4. Z greater than 3 represents the right sided sequence and z less than 4 will represent a left sided sequence. तो अब ये जो फंक्शन है 2z इनवर्स इंटू 1/1 minus 4z इनवर्स, अगर इसको आप स्टेप वाइज देख लें, so for right sided sequence we say z greater than 4 means z is greater than 3 and z is greater than 4, then their intersection results in z greater than 4. तो सिर्फ ये जो टर्म है 1/1 minus 4z इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा? a पावर n u ऑफ n, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है, सो दिस विल बी 4 पावर n u ऑफ n। ठीक, तो अगर आप इसको 2z इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो मीन्स इट इंट्रोड्यूसेस अ 1 यूनिट राइट शिफ्ट एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2. So 2z inverse divided by 1 minus 4z inverse results in 2 times 4 power n into u of n minus 1. ठीक है, इस फंक्शन का इनवर्स क्या था? 1/1 minus 4z इनवर्स का 4 power n u of n.
तो अगर आप इसको z इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब टाइम डोमेन में आप इसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, n को रिप्लेस कर दें n-1 से। So this will be then 4 power n-1 into u of n-1। फिर एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप टाइम डोमेन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो z डोमेन is multiplied with the same value। So this results in 2 times 4 power n-1 into u of n-1। Similarly for the transform z inverse into 1 over 1 minus 3z inverse क्या हो जाएगा, 3 power n-1 u of n-1। Clear? So from these two above we say x of z is 2z inverse divided by this value minus z inverse divided by this, or x of z initially was given as z minus 2 divided by z minus 3 into z minus 4। इसका इनवर्स क्या बनता है, 2 times 4 power n-1 into u of n-1 minus 3 times n-1 u of n-1 with a region of convergence z is greater than 4। ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की? z लेस देन 3। z लेस देन 3 तो वो लेफ्ट साइडेड होगा। जी सर। तो उसके आरओसीज क्या बनेंगे, सॉरी इनवर्सेस? जी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, लेफ्ट साइडेड z लेस देन 3 मींस z लेस देन 3 एंड z लेस देन 4, इनका इंटरसेक्शन बनता है z लेस देन 3। वही नहीं बनेगा सारा इनवर्स, वही नहीं बनेगा सारा कुछ, सिर्फ उसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चेंज होगा। जी, सिर्फ इसका रीजन नहीं चेंज होगा, रीजन चेंज हुए ना, पहले z ग्रेटर देन 4 था राइट साइडेड, ठीक है, तो दोनों z ग्रेटर देन 3 और z ग्रेटर देन 4 में जो आपके इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी z ग्रेटर देन 4 फॉर राइट साइडेड। लेफ्ट साइडेड में क्या होगा, z लेस देन 3 एंड z लेस देन 4, तो इनका कॉमन रीजन क्या बनेगा, z लेस देन 3, ठीक है। तो दोनों लेफ्ट साइडेड होंगे। तो वी नो दैट फ्रॉम z ओवर z माइनस a का लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस क्या है, माइनस a पावर n u ऑफ माइनस n माइनस a 1 फॉर z लेस देन a। तो यहाँ पे पहले केस में क्या है, फॉर z लेस देन 4, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 ओवर 1 माइनस 4z इनवर्स का इनवर्स क्या बनता है, माइनस 4 पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, ठीक। तो 2 टाइम्स z इनवर्स इंटू 1 ओवर 1 माइनस 4z इनवर्स का लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस इनवर्स क्या होगा, तो इसी में आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें और फिर n को रिप्लेस कर दें n माइनस 1 से, ठीक। तो क्या बनता है, माइनस 2 इंटू 4 पावर n माइनस 1, इस n को रिप्लेस करें n माइनस 1, सो दिस विल बी u ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस 1। तो इसको आप ओपन कर दें तो क्या बनता है, माइनस n प्लस 1 माइनस 1, 1 cancels out, so you are left with minus 2 times 4 power n minus 1 into u of minus n, ठीक है। Similarly for z less than 3, इसका इनवर्स क्या बनेगा, this will be minus 3 power n minus 1 into u of minus n। एक्चुअली तो ये बनेगा ना माइनस 3 पावर n into u of minus n माइनस 1, फिर z इनवर्स की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस 3 पावर n माइनस 1 इंटू यू ऑफ माइनस n। क्लियर? तो अगर आपके पास x ऑफ z क्या हो, z माइनस 2 डिवाइड बाई z माइनस 3 z माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करके हमने इस फॉर्म में लिखा, तो इसका लेफ्ट साइडेड इनवर्स क्या बनेगा, x ऑफ n विल बी माइनस 2 टाइम्स 4 पावर n माइनस 1 इंटू यू ऑफ माइनस n प्लस 2 टाइम्स 3 पावर n माइनस 1 इंटू यू ऑफ माइनस n। So this represents a left-sided inverse. Third possibility क्या थी, two-sided sequence, z greater than 3 and z less than 4. So z greater than 3 and z less than 4. तो इनका common region क्या बनता है, z greater than 3 and z less than 4. z greater than 3 represents a right-sided sequence. तो जब आप इसका inverse लेंगे तो इसका वो inverse लेंगे जो कि right-sided को represent कर रहा है।
and z less than 4 represents a left sided. आप इसका वो inverse लेंगे which represents a left sided. So again original function is z minus 2 divided by z minus 3 into z minus 4, which is again given in this form. So for z less than 4 it is a left sided sequence. तो जो पहला टर्म है इसका इनवर्स क्या बनता है लेफ्ट साइडेड के लिए, -2 power 4 power n minus 1 into u of minus n. और जो सेकंड पार्ट है इसका इनवर्स बनता है राइट साइडेड के लिए, सो दैट्स इनवर्स इज 3 power n minus 1 into u of n minus 1 with a ROC z greater than 3 and z less than 4. तो ये एक आपको सिस्टम फंक्शन गिवन था, सॉरी ट्रांसफॉर्म z minus 2 by z minus 3 into z minus 4, and we ended up with 3 possible ROCs. तो तीनों हमने स्टेप वाइज फाइंड किए हैं यूजिंग द टू ट्रांसफॉर्म पेयर्स एंड एग्जांपल 10.1 एंड 10.2. तो आपने उनको सीखना भी है, समझना भी है और याद भी करना है. अब ROC की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है. First property क्या है, ROC of x of z consists of a ring in the z plane centered about origin. So ROC is always in the form of ring, ठीक है. कभी उसमें origin included होगा, कभी उसमें origin include नहीं होगा. It may extend to infinity. ROC में कभी भी पोल नहीं हो सकता. पोल्स कौन सी वैल्यूज हैं? For which the system is undefined. So रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का तो मतलब ये वो रीजन जहां पे आपका ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करे. तो पोल्स पे ऑलवेज डाइवर्जेस, सो पोल कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ ROC. थर्ड वी से if x of z is of finite duration, then the ROC is the entire z plane except possibly z is equal to 0 and or z is equal to infinity. ठीक. तो फाइनाइट का मतलब क्या है? इसे समेशन n फ्रॉम -n1 टू +n1 x ऑफ n z पावर -n. तो इस इक्वेशन के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? सो जनरली वी से इट्स द एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो इसके लिए पहली एग्जांपल लें, लेट्स से x1 ऑफ n इज डेल्टा ऑफ n. तो x1 ऑफ z क्या आएगा? 1. So we say a region of convergence क्या है? It is the entire z plane including z is equal to 0 and z is equal to infinity. एक और फंक्शन ले टाइम डोमेन में डेल्टा ऑफ n minus 1. तो ट्रांसफॉर्म क्या बनता है? This x2 of z will be z inverse. अब z inverse को आप लिख सकते हैं 1 over z. तो इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? It's the entire z plane except z is equal to 0. क्योंकि यहाँ पे अगर आप z is equal to 0 डाल दें तो 1 over 0 is undefined. But if z is equal to infinity, then 1 over infinity approximates to 0. So इस second case में we say ROC gets the entire z plane except z is equal to 0. Similarly, if you consider an impulse shifted to the left side, that is delta of n plus 1. इसके लिए x of z क्या होगा? z. So what is the ROC? ROC is the entire z plane except z is equal to infinity. ठीक. अब तीनों को ऐड कर दें, x1 plus x2 plus x3. So we say x of n will be delta of n plus delta of n minus 1 plus 2 times delta of n plus 1. Delta of n का ट्रांसफॉर्म 1 है, delta of n minus 1 का z इनवर्स, delta of n plus 1 का z. So this is 1 plus 1 over z plus z. और we say सिंप्लीफाई कर दें इस फॉर्म में तब भी ठीक है. तो यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इट्स द एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट both z is equal to 0 and z is equal to infinity. Means x of z किन पॉइंट्स पे undefined है. तो अगर आप z की वैल्यू 0 लें तो x of 0 is undefined. Similarly अगर आप यहाँ पे z की वैल्यू infinity लें, capital X of infinity is also equals to undefined. ठीक है, या infinity वैल्यू आएगी infinite. So we say this property क्या थी? If x of z is of finite duration, then the ROC is the entire z plane except possibly z is equal to 0 and or z is equal to
इन्फिनिटी। तो अभी इससे पहले जो हमने दो सीक्वेंसेस किए थे, a पावर n u ऑफ n एंड माइनस a पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, क्या वो फाइनाइट ड्यूरेशन थे या इनफाइनाइट ड्यूरेशन थे? एनीवन लिसनिंग? सर इनफाइनाइट थे। जो पहले दोनों हमने कंसीडर किए दे वर इनफाइनाइट। सो हियर वी से अगर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है तो फिर उसमें जीरो और इन्फिनिटी या तो इंक्लूडेड होंगे और उसी में या इंक्लूडेड नहीं होंगे। जी किसी का माइक ऑन है और कुछ पूछना चाह रहे हैं? कोई नहीं है। एक और प्रॉपर्टी क्या है, इफ x of z is rational means p by q फॉर्म में, and if x of n is right sided then its ROC is the region in the z plane outside the outermost pole। अभी पहले इसको डिस्कस किया था। Similarly, if x of z is rational and if x of n is left sided sequence then ROC is the region in the z plane inside the innermost pole। ठीक, फिर एक और सॉल्व एग्जांपल है, अभी उनसे थोड़ी सी डिफरेंट और तरह से। we say x of n is b power n magnitude with b greater than 0। इसको हम ओपन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, पहले हम कर चुके हैं फॉर चैप्टर नंबर 5 में, that this can be written as b power n u of n plus b power minus n u of minus n minus 1। ठीक है, then from example 10.1 and 10.2 we say b power n u of n का ट्रांसफॉर्म क्या है 1 over 1 minus bz inverse with z greater than b, and b power minus n u of minus n minus 1 का ट्रांसफॉर्म क्या है minus times 1 over 1 minus b inverse z inverse with the region of convergence z is less than 1 over b। अब यहाँ पे आपने b की वैल्यूज को इस तरह से देखना है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसमें क्या बनता है। अज्यूम करें b की वैल्यू 1 से ज्यादा है, लेट्स से b इक्वल्स टू 2, तो 1 ओवर b क्या हो जाएगा 1 over 2। अब एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या कह रहा है z ग्रेटर देन b means z is greater than 2, and the second one says z is less than 1 over b or z is less than 1 over 2। तो r1 is z greater than 2, r2 is z less than 1 over 2। तो इनका कॉमन रीजन बनेगा कोई? हेलो, नो सर। तो अगर z की वैल्यू 2 से ज्यादा हो और z की वैल्यू 1 over 2 से कम हो तो इंडिविजुअली तो इनके इन्वर्सेस पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आप इनको कंबाइन कर लें दोनों को तो इनका कॉमन रीजन क्या है 0 है। सो इन दैट केस वी से ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। कब? जब b की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, सो रैशनल फॉर्म में अगर आप x ऑफ z को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे 1 over 1 minus bz इनवर्स माइनस 1 over 1 minus b इनवर्स z इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर दें रैशनल फॉर्म में, it ends to b minus 1 over b divided by z minus b into z minus 1 over b। सर एक्सक्यूज मी, जी सर ये कॉमन रीजन वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे ये दोबारा आ रहा है, इसको यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये रैशनल फॉर्म है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के साथ क्या है z ग्रेटर देन b एंड z लेस देन 1 ओवर b। अब b की वैल्यूज क्या पॉसिबल हैं? b कैन बी ग्रेटर देन 1, b कैन बी लेस देन 1, कोई भी रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यूज में b की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा? सो लेट्स अज्यूम b की वैल्यू 2 है, तो 1 ओवर b क्या होगा 1 ओवर 2। So if we say there is a pole at b equals to 2 and there is also a pole at 1 over b which is equal to 1 over 2, तो अगर b की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो 1 over b की वैल्यू फिर b से कम होगी। So b greater than 2 represents b equals to 2 right sided है, so it's on the outside of this circle। ठीक है,
और अगर आप 1/b की वैल्यू 1/2 लेंगे तो इट्स इनसाइड ऑफ दिस सर्कल। तो इनका कॉमन रीजन क्या बनता है? सर कोई नहीं होगा, यस सर। ठीक है। तो जब b की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेंगे देयर इज़ नो कॉमन रीजन, सो वी से x ऑफ z डज नॉट कन्वर्ज और वी से x ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट। x ऑफ z की तो ये वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है, लेकिन b की वैल्यूज़ हैं जो कि डिफाइन करेंगी कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है या इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर b की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो फिर इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। जब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो वी से दिस ट्रांसफॉर्म पेयर इज़ नॉट अवेलेबल। सिमिलरली इन द सेकेंड केस वी से b की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लें। b की वैल्यू अगर हम लेते हैं 1/3 तो 1/b क्या हो जाएगा? 3, ठीक। इसको पोल जीरो प्लॉट पे अगर आप देख लें तो 1/b की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू 1/3। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या था? z greater than b means z greater than 1/3 and then z less than 1/b। तो अगर आपके पास ये x of z है, ठीक है, which came out to be in the rational form as b minus 1/b, z divided by z minus b into z minus 1/b. So if x of z does not converge means its convergence inverse does not exist or it is not possible. Means energy conversion from one form to another form is not सर possible. एक्सक्यूज Apply मी जी सर 1/b जो है 3 वो आउटवर्ड नहीं होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में? नहीं, क्यों और सर? उसी क्या है z greater than b and z less than 1/b, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ से आए हैं? ये हमने स्टार्ट में लिए हैं कि b पावर n u ऑफ n अगर इसका ट्रांसफॉर्म आएगा वो ये होगा और आर ओ सी क्या होगा? z ग्रेटर देन b। तो दूसरा फंक्शन है b पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपके पास ये टर्म बनता है विद z लेस देन 1/b, ठीक है। यस एक का सर आर ओ सी जेड ग्रेटर देन बी है, दूसरे का आर ओ सी जेड लेस देन 1/b है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी जो रैशनल फॉर्म है इट कम्स आउट टू बी b minus 1/b z over z minus b into z minus 1/b with ROC z greater than b and z less than 1/b। तो फिर हमने कहा b की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो कोई ROC नहीं है कॉमन, तो x of z does not converge। लेकिन in the second case we say b is between 0 and 1, so then b is equal to 1/3 assumption है, तो 1/b क्या हो जाएगा? 3। तो 1/b is greater than b, so z less than 1/b is left sided sequence, z greater than b will be right sided। इन दोनों का कॉमन रीजन क्या बनता है? z greater than b and less than 1/b with a condition b should be greater than 0 and less than 1, ठीक। so if x of z does not converge it means its inverse does not exist or its inverse is not possible। तो आप इस ट्रांसफॉर्म या इनवर्स को इस तरह से भी ले सकते हैं, जहाँ यहाँ से मेरा रफली लिखा हुआ है कि एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कि आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएं फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में आ सकें। फिर एक और है पावर सीरीज एक्सपेंशन मेथड। अगर आपको x of z given है 4z square plus 2 plus z square with a region of convergence z is greater than 0 and z is less than infinity, ठीक है, means it is a right sided sequence। so using the time shifting property x of n का ट्रांसफॉर्म x of z है तो x of n minus n naught का ट्रांसफॉर्म क्या है? z power minus n naught into x of z। so delta of n का ट्रांसफॉर्म 1 है, 4 times delta of n का ट्रांसफॉर्म 4 होगा, 4 times delta of n minus n naught का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 4 into z power minus n naught। Similarly 4 times delta of n plus 2, तो n naught की वैल्यू हम क्या लेंगे? minus 2, so this will be 4z square। x of z is equal to 4z square plus 2 plus z inverse। तो x of n क्या होगा? 4 times delta of n plus 2 plus 2 times delta of n plus 3 times delta of n minus 1।
So we say it's a power series कि z की powers में आप चल रहे हैं. For example, like x of z is 1/1 minus a z inverse with z greater than a. तो इसका डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इनवर्स. जी, इसका इनवर्स डायरेक्टली क्या आएगा? Using the transform pair for right-sided sequence. सर a की पावर n z of n. Z of n. U of n. A power n. A power n u of n. प्लीज अगर आप टाइम डोमेन में तो n होगा, z डोमेन में तो z यूज होगा. x ऑफ z में कहीं भी आपको n नहीं मिलेगा, ठीक है. और x ऑफ n में आपको कहीं पे z नहीं नजर आना चाहिए, क्योंकि या तो वो टाइम डोमेन सिग्नल है या z डोमेन सिग्नल है, ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को लॉन्ग टर्म डिवीजन से कर रहे हैं कि 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ए जेड इनवर्स. 1 को अंदर रखें, 1 माइनस ए जेड इनवर्स को बाहर रखें. 1 से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 1 माइनस ए जेड इनवर्स, प्लस माइनस कर दें तो ए जेड इनवर्स. फिर मल्टीप्लाई करें किससे? ए जेड इनवर्स से. सो प्लस ए जेड इनवर्स माइनस ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे. सो दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर जेड पावर माइनस 2 प्लस माइनस दिस गिव्स यू ए स्क्वायर जेड पावर माइनस 2. फिर आप इसको यहाँ पे ले आए प्लस ए स्क्वायर जेड पावर माइनस 2. तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो इट इज ए स्क्वायर जेड पावर माइनस 2. फिर ये दूसरे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स माइनस ए जेड इनवर्स इंटू ए स्क्वायर जेड पावर माइनस 2. सो दिस विल बी माइनस ए क्यूब जेड पावर माइनस 3. अगेन प्लस माइनस ए क्यूब जेड पावर माइनस 3. सो वी से एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस ए जेड स्क्वायर जेड पावर माइनस 2 अप टू इन्फिनिटी. पहले का ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? ए पावर 0 टाइम डोमेन. 1 का इनवर्स क्या होता है? डेल्टा ऑफ n, ठीक है. सो दिस इज ए पावर 0 डेल्टा ऑफ n. सेकेंड वन विल बी ए पावर 1 डेल्टा ऑफ n माइनस 1. थर्ड वन इज ए पावर 2 डेल्टा ऑफ n माइनस 2. सो वी कैन से इट इक्वल्स टू ए पावर n u ऑफ n, क्योंकि u ऑफ n किसके इक्वल है अगर आपको याद हो? डेल्टा ऑफ n प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 1 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 2 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 3. ठीक, तो x ऑफ n को आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पावर सीरीज मेथड और सिंपली यूजिंग ट्रांसफॉर्म पेयर्स. फिर ये एक और एग्जांपल है 10.14. इसको जरा नोट कर लें, सॉल्व हुई है यहाँ पे, इसको खुद देख लें, ठीक है. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म. प्लीज यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बुक टेबल 10.1 एंड ट्रांसफॉर्म पेयर्स टेबल 10.2. पहले ये कर लें फिर उसको डिस्कस कर लेंगे. एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म. एनालिसिस का क्या मतलब था? एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम्स हर क्लास में पूछता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम? सर ये सिस्टम स्टेबल है, कॉजल है, यही प्रॉपर्टीज चेक करने सिस्टम. और कौन सी वैसे ही दो हैं? नो सर, इन्वर्टिबिलिटी है, टाइम इनवेरिएंट, मेमोरी लेस. ठीक. सो व्हेन वी से एनालिसिस ऑफ सिस्टम्स तो 4 एलटीआई सिस्टम्स. तो एलटीआई में तो लीनियर टाइम इनवेरिएंस यहीं पे चला जाता है. वी आर लेफ्ट विद अदर 4 प्रॉपर्टीज, कॉजल, स्टेबल, memory less and invertible. So here we say that analysis and characterization of LTI systems using Z transform. Z transform से आप किस तरह बताएंगे कि सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है. So generally we say convolution property says y of n is equal to x of n convolved with h of n. Then in the Z domains we simply say they are multiplied. So y of z will be x of z multiplied with h of z. Causality का criteria वही वाला चल रहा है, ठीक है. h of n should be 0 from n less than 0. So we say h of z क्या generally n from minus infinity to plus infinity h of n z power minus n. So we say it's a causal system.
एच ऑफ एन इज 0 फॉर एन लेस देन 0, तो समेशन की लिमिट्स क्या बन जाएंगी? एन फ्रॉम 0 to infinity h of n z power minus n. So means that h of z does not contain any positive powers of z. ठीक है, जो भी आपके पास सिस्टम फंक्शन होगा, now here we do remember we say h of z represents the system function. तो तीन टर्म्स हैं, x of n क्या है? इनपुट सिग्नल है टाइम डोमेन में, x of z will be considered as input function. ठीक, y of n is the system output या output signal. So here we can say in terms of z we said will be output function. So output function will be y of z, input function will be x of z, and system function will be h of z. h of z को system function क्यों कहते हैं? ये y के क्वेश्चन है। h of z को system function क्यों कहते हैं? y of z को system function क्यों नहीं कहते? क्योंकि सर सर ये ये इनपुट है। y आउटपुट है और h of z जो है वो ट्रांसफर फंक्शन, जो फंक्शन उस पे अप्लाई होता है सिस्टम पे, और x of z इनपुट है। तो h of z को आप सिस्टम फंक्शन इसलिए कह रहे हैं कि जो आउटपुट है बेसिकली इट्स अ ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट या चेंज्ड इनपुट। ठीक है, इनपुट तो कांस्टेंट है जो भी आ रही है, तो उसमें जो चेंजेस आ रही हैं इट इज बिकॉज ऑफ h of z। बिकॉज ऑफ h of z। अगर h of z की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लें तो इनपुट पे कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट विल बी इक्वल टू द सेम इनपुट। h of z की वैल्यू लेट्स से 2 आती है तो आउटपुट विल बी 2 टाइम्स इनपुट। h of z की वैल्यू 1/2 आती है तो आउटपुट विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द इनपुट। तो जो चेंजेस आ रही हैं आउटपुट में दैट इज बिकॉज ऑफ द h of z और सिस्टम फंक्शन। इसको आप गेन भी कह सकते हैं सम केसेस में, इसको आप ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं। इस इक्वेशन से h of z क्या हो जाएगा? y of z डिवाइडेड बाय x of z, दैट इज इनपुट बाय आउटपुट बाय इनपुट। So that's why we say it is a system function. ठीक, तो जो चैप्टर नंबर 5 में था it was frequency response। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज क्या होगी? सिस्टम फंक्शन। तो मेरे पास ओके, कॉजेलिटी का क्राइटेरिया हमने देख लिया कि क्या है। ठीक है, that h of z is for n equal to 0 to infinity h of n z power n means h of z does not contain any positive powers of z। अब क्यों पॉजिटिव पावर्स ऑफ z नहीं होनी चाहिए? दैट मेक्स द सिस्टम नॉन कॉजल। तो अगर h of z equals to z तो मींस h of n क्या होगा? डेल्टा ऑफ n plus 1। so we say output is equal to input convert with impulse response। तो अगर h of n की वैल्यू डेल्टा ऑफ n plus 1 हो तो output will be x of n plus 1। so as output depends on future input so system is non-causal। however if h of z is z inverse then h of n is delta of n minus 1, x of n convolved with delta of n minus 1 results in x of n minus 1। so output equals to previous input, so the above system is causal। h of z आपके पास जिस भी फॉर्म में होगा अगर उसमें पॉजिटिव पावर्स ऑफ z इन्वॉल्व हैं then we say system will be non causal। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉजिलिटी दो बनती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? discrete time system is causal if and only if the ROC of its system function h of z का जो region of convergence होगा is the exterior of a circle including infinity। तो generally हम क्या कहते हैं? right sided sequences represents a causal system। ठीक, कि अगर आपके पास सीक्वेंस क्या होगा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस राइट साइडेड होगा तो देन वी से इट इज अ कॉजल सिस्टम। फॉर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस वी से इट इज एंटी कॉजल। ठीक, और टू साइडेड के लिए क्या होगा? राइट साइडेड इज कॉजल, लेफ्ट साइडेड इज एंटी कॉजल।
two-sided is generally defined as non-causal systems. Basically, non-causal or anti-causal are same. So a discrete time LTI system with rational system function h of z equals to p of z divided by q of z is causal if and only if सर ये ऊपर वाला जरा दोबारा बताएं। a discrete time system is causal if and only if ROC of its system function h of z, जो h of z के लिए आप region of convergence find करेंगे, that is the exterior of a circle. ठीक है, कौन सा सर्कल जहां पे आपका पोल होगा, ठीक, exterior of a circle with a pole magnitude, with a maximum pole amplitude magnitude, ठीक, which may include infinity or may not include infinity. So generally हम क्या कहते हैं कि right sided sequences represents a causal system. Means अगर आपको system function known है h of z, तो उससे आप डायरेक्टली किस तरह देख के बता सकते हैं कि सिस्टम कॉजल है या सिस्टम नॉन कॉजल है, वेदर इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जो भी ऑर्डर हो सिस्टम का, ठीक है। तो डायरेक्टली उससे कैसे बताएंगे कि अगर उसका आर ओ सी इज रिप्रेजेंटिंग अ राइट साइडेड सीक्वेंस, देन वी से इट इज अ कॉजल सिस्टम। दूसरी डायरेक्टली आप कैसे बता सकते हो कि discrete time LTI system with rational system function h of z is p of z divided by q of z is causal if and only if कब ROC is the exterior of the circle outside the outermost pole, that is generally we say it's a right sided sequence। और दूसरी probability इसकी वो क्या है condition, h of z is p of z by q z, the degree of numerator polynomial in z cannot be greater than the degree of the denominator polynomial। Means p of z और q of z अगर इनकी डिग्री इक्वल हो, still the resultant system will be a causal system। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो न्यूमरेटर से, फिर भी इट इज कॉजल। लेकिन अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से, देन द सिस्टम विल बी नॉन कॉजल, फिर उसमें पॉजिटिव पावर्स ऑफ z इन्वॉल्व होंगे। So here we say that degree of numerator polynomial in Z cannot be greater than the degree of the सर सर बिजली चली गई सर। सर सिस्टम का रिस्पॉन्स ऑनलाइन हो जाए तो शायद सही हो जाएगी। सब ठीक है। जी सर अब ठीक है। जी बात शुक्र है। Okay, let's come back to this thing। LTI system को आप कैसे डिफाइन करते हैं फ्रॉम द सिस्टम फंक्शन h of z whether it is causal or not causal। स्क्रीन शेयर कर दें। फिर नहीं, डिस्टॉर्शन है सर, कट रही है आवाज। सर आपकी बात कट रही है, प्रॉब्लम आ रही अब ठीक हो गई थी ना यार, अब क्या मसला हुआ है? है। सर आप जब सर तो अब आप फिर बता ठीक सके हो ठीक गई है। है। स्क्रीन नहीं है शेयर? नो सर स्क्रीन शेयर नहीं है। क्यों नहीं शेयर हो रही, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। दोबारा मैं दोबारा इन आउट हो गया।
जी, अब क्या हाल है? अब ठीक है सर। आवाज ठीक है? जी सर। शेयर नहीं हो रही, कहते साइज का ज्यादा है सर बीच कॉल में का। फिर खराब हो जाती है सर आपकी आवाज़। लगता है आपका नेट बहुत स्लो है आज। नहीं, बिजली चाहिए है पे मोबाइल के थ्रू कनेक्ट किया, लेकिन वो नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। एक मुझे सर आपकी बिजली बातों आएगी की समझ वापस। नहीं आ रही सर, बहुत ज़्यादा बीच में